Hello everyone, good morning. Welcome back in the topic probability. As we have introduced yesterday the topic probability, there major thing we discussed that is nothing but finding sample space. Based on that only we have some questions. Let's see now how to find the probability, how to present the answer and how to solve these all questions. Let's begin. The question is a dice is thrown. Find probability of getting even number. Forget about all these questions. Just go for even number. A dice is thrown. When the dice is thrown, what will be the sample space? We write in form of S and a curly bracket 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Number of sample space, that means we write in this way. How many numbers are there in sample space? How many events are there in the sample space? So it is 6. Now we need to get even number. Okay. So what you can do is let A be the event of getting even number. Okay. So in the same way you have to write it, and all the questions will be writing in the same way. So don't have to worry for it. Don't worry. In short time you will understand. So what A will have? So even numbers are कितने even numbers 2, 4 and 6, right? So 2, 4, 6. So therefore n of A is going to be equal to n of A मतलब number of the event A. How many events we have? It is nothing but 3 events. ठीक है? The event contains three events, three different individual events. So probability of A is going to be equal to, as it is asked to find out a probability, number of A upon number of S. That means 3 by 6, which is 1 by 2. Basically the question was very simple. There are 3 even numbers, 3 out of 6. So that's the answer. But we have to write all these things. Okay, got it? So this is your answer of the A question. If I want B, now we will continue. I will not write sample space now. Multiple of 3. So let B be the event of getting multiple of 3. So multiple of 3 कितने हैं? 3 1s are 3, 3 and 3 2s are 6. So 6. So how many these are? 2. So number of B is going to be equal to 2. So probability of B will be equal to number of B upon number of sample space. So it is 2 by 6, 1 by 3. Not a multiple of 3. So other than 3 and 6, other than 3 and 6, not a multiple of 3. So when we say not multiple of 3, the B is multiple of 3. Not multiple of 3 we call it as B dash. Okay, it's called as a complement of it, or you can say not of B. Okay, so B dash be the set, or B dash be the event of getting not multiple of. So how many these are? Let us see. It would be probability of B dash will be, I'm directly writing it. So remaining one, matlab 2 these are, the 4 remaining are 4 out of 6. So 4 by 6, and it would be 2 by 3. Remember one thing, probability of B dash is equal to 1 minus probability of B. 1 means the maximum value of probability, which can be 1. Okay, that's the reason it is 1 minus. That we'll be discussing in short time, don't worry. But it would be 1 minus of probability of P. So 1 minus of probability of B कितना है? 1 by 3. Is it going to be 2 by 3? I hope you understood. 2 by 3, 2 by 3. ठीक है, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बट लेटर ऑन करेंगे ये सारी चीज़ें. बट अभी तो ये बात समझ में आ गया. सी वाला, डी वाला, नंबर बिटवीन 3 and 6. Between 3 and 6 means only 4 and 5. It's only 4 and 5. 3 and 6 are not counted. That's it. You can easily get the answer. है ना, बहुत सिंपल है. नेक्स्ट वन, 2 कॉइन्स आर टॉस. सबसे पहले ये देख लो एंड सैम्पल स्पेस लिख लो.
2 coins are tossed together. तो HH, HT, TH, TT. So number of sample space is going to be equal to कितने events है 1 2 3 4 4 independent events है उसमें. ठीक है. So now getting 2 head. Okay, 2 heads. Heads होना चाहिए. Heads. Getting 2 heads यहाँ पे क्या हो सकता है? तो let A be the event of getting, वही चीज़ है, double getting 2 heads. So number of A would be, जैसे नंबर ऑफ एस चाहिए वैसे नंबर ऑफ ए चाहिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें, नंबर ऑफ एस है नंबर ऑफ ए. तो नंबर ऑफ ए कितने हैं, कितने ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ 2 हेड्स है, तो इट इज़ ओनली 1 इवेंट. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गोइंग टू बी इक्वल टू 1/2, 1/4 सॉरी, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस. इसलिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं. ठीक है, लिखते हैं. चलो, number of A upon number of S, so it will be equal to 1/4. A head, that means single head, so let B be the event of getting 1 head. Okay, 1 head, so there should be only 1 head, so number of B is going to be equal to 1 head. 1 head का मतलब क्या होता है? 1 head मतलब यहाँ पे एक है and यहाँ पे, तो we have 2 such events. So probability of B will be equal to number of B upon number of S, so that is 2/4. Answer 1/2 है ना, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है. At least 1 head. Okay, let C be the set event of getting at least 1 head. ठीक है, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या हो गया? देखो, 1 हेड एंड एटलीस्ट 1 हेड में डिफरेंस है क्या? यस, ऑफ कोर्स इट इज़. तो वो देखते हैं सबसे पहले कि 1 हेड एंड एटलीस्ट 1 हेड में क्या डिफरेंस है. देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड. एटलीस्ट मतलब मिनिमम 1 हेड शुड बी देयर, मिनिमम 1, तो 1 एंड मोर. तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट 1 मतलब 1 एंड मोर, एंड एटमोस्ट का मतलब क्या होता है? एटमोस्ट 1 या फिर एटमोस्ट 2, जो भी हो, इसका मतलब 1 एंड लेस. याद रखो, एटलीस्ट, अभी तो एटलीस्ट चाहिए 1 एंड मोर. ठीक है ना, 1 एंड मोर. तो 1 एंड मोर मतलब ये है, ये भी 1 एंड मोर है, ये भी 1 एंड मोर, बस ये नहीं आएगा. तो इट इज़ नंबर ऑफ सी विल बी इक्वल टू 3. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज गोइंग टू बी इक्वल टू n of C upon n of S, exactly. So 3/4, and here is the answer. Okay, got it. So easy, so very easy. And last one also, I'll do it here itself. At most 1 tails, at most 1 tail, maximum 1 tail. ये बहुत इंटरेस्टिंग है. तो let D be the event and all, so that वो at most 1 tail. तो नंबर ऑफ D गोइंग टू बी, कौन से आएंगे एट मोस्ट में? एट मोस्ट 1 टेल, एट मोस्ट मतलब 1 एंड लेस. तो इसमें 1 एंड लेस है? नहीं है. इसमें 2 है, तो ये तो नहीं आएगा. इसमें 1 एंड लेस है? यस, इसमें 1 एंड लेस है, मतलब 1 है. इसमें 1 एंड लेस है? यस. टेल की बात कर रहे हैं हम लोग, टेल्स की बात कर रहे हैं. इसमें टेल्स में है क्या? नहीं है, 0 है, तो ये भी काउंट होगा 1 एंड लेस. ओके, इवन नो टेल इज कंसिडर्ड इन एट मोस्ट. ठीक है, रिमेंबर दैट. मतलब इट इज़ लाइक at most you can score 100 in mathematics. If you say that if you say that, then don't you think one can get 0 as well? There is no issue, no problem. At most you can get 100, that means you cannot get 101, but less than 100 anything you can take, 0 also you can take. So that's the case here. At most tails, at most का मतलब होता है, at most 1 tail का मतलब होता है 1 and less. जो यहाँ पे है 1 and less, तो 1 and 0 होगा, less का मतलब क्या होगा? 0, no tails, तो 1 and 0. तो 1 and 0 कितने? 3. तो नंबर ऑफ इट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी विल बी इक्वल टू 3/4. दैट्स इट, सो इजी. ओके, आगे बढ़ते हैं. वी हैव दीज थिंग्स, यू कैन चेक दैट. अभी भी है, तो हियर यू माइट अंडरस्टैंड इन मोर बेटर वे, एट लीस्ट एंड एट मोस्ट. देखो, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड
और अ कॉइन टॉस थ्राइस, मीनिंग सेम ही है, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो एक ही की बात करते हैं. सैम्पल स्पेस पहले देखते हैं. सैम्पल स्पेस मैंने बोला था पहले 3 हेड्स, फिर 2 हेड्स के ऑल द कॉम्बिनेशंस, फिर 1 हेड के ऑल द कॉम्बिनेशन, एंड फिर नो हेड के ऑल द नो हेड इन सेंस TTT. याद रखना पड़ेगा, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 8 होते हैं, तो यू कैन इजीली ऑब्जर्व दैट. ओके, अभी पहला वाला ए वाला क्वेश्चन हम लोग ग्रीन से करते हैं. ए वाला क्वेश्चन, गेटिंग ऑल हेड्स, ऑल हेड इन सेंस 3 हेड होने चाहिए ना, 3 कॉस्ट टॉइन हो गया. तो गेटिंग ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स और 3 हेड्स यू कैन से. तो n ऑफ a इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1. 1 ही है ना, एक ही इवेंट है. therefore we have probability of a going to be equal to 1/8 because total is 8. ओके, उसके बाद b देखते हैं. b is with the red color, 2 heads. so b is getting, please write properly, I am writing in short now. Let b be the event of getting, ऐसे होना चाहिए. b is getting 2 heads. 2 heads का मतलब होता है ओनली 2 heads. तो ये रहा 2 head, ये रहा 2 head, ये रहा 2 head. इसमें भी 2 है लेकिन वो नहीं आएगा बिकॉज आई विल नीड ओनली 2 हेड्स, है ना. सो दैट्स इंटरेस्टिंग क्या. तो n ऑफ b इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3. ये बहुत आपको प्रॉपरली याद रखना पड़ेगा. तो 3/8 हो गया नंबर ऑफ b अपॉन नंबर ऑफ s. ठीक है, ब्लू कलर से देखते हैं अभी. c क्या है, एटलीस्ट 1 हेड. तो c इज गेटिंग एटलीस्ट अ हेड है, सॉरी, एटलीस्ट अ हेड, 1 हेड. एक हेड चाहिए तो कितना, एटलीस्ट 1 हेड. तो एटलीस्ट लिस्ट का मतलब क्या होता है, 1 एंड मोर, जो भी हो 1 हो. एटलीस्ट 2 होता है तो 2 एंड मोर, यहाँ पे 1 एंड मोर होगा. एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, 1 एंड मोर. तो ये 1 एंड मोर है क्या पहला वाला, यस 1 एंड मोर हेड है. इसमें भी 1 एंड मोर है, इसमें भी 1 एंड मोर है, इसमें 1 एंड मोर है. 1 एंड मोर, 1 एंड मोर, 1 एंड मोर, इसमें नहीं है बस. तो वी हैव 7 terms there. So n of c going to be equal to 7 and probability of c is going to be equal to 7/8. That's it. At most 2 heads. D वाला क्वेश्चन जो है वो है D getting at most 2 heads. At most का मतलब क्या होता है, 2 and less. 2 and less. याद रखो इसको. एट लीस्ट का उल्टा होता है, दैट एंड मोर होता है उल्टा. लिस्ट के यहाँ पे मोस्ट है ना, मोस्ट के उल्टा लेस. तो 2 एंड लेस. तो डी विल हैव व्हाट आर टर्म्स, तो वो हो जाएंगे, लेट्स सी दैट. एटमोस्ट 2 हेड्स, एटमोस्ट 2 मतलब 2 एंड लेस. तो ये 2 एंड लेस नहीं है, ये तो 2 एंड मोर है. ये 2 एंड लेस है क्या, यस. ये 2 एंड लेस है क्या, यस. ये 2 एंड लेस है क्या, यस. ये 2 एंड लेस है, यस. ये भी 2 एंड लेस है, ये भी 2 एंड लेस है. ये 2 एंड लेस है क्या, यस. 0 है तो 0 भी चल जाता है. दैट्स इंटरेस्टिंग यार. तो ये भी 7 आता है एंड प्रोबेबिलिटी आता है 7/8. सिंपल सिंपल, वेरी वेरी इजी. ये हो गया आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन. ये पहले कंप्लीट करते हैं. अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 cards है ये. Please make sure that you make this change in your PDF. I'm sending the PDF of these questions to you today. I'll just write that. ये 52 cards है, 50 cards. Find the probability that, वही हमने जो कल देखा था, you remember that? Okay, and ace. ace मतलब वो इक्का, A वाला जहाँ पे लिखा होता है ace. हमने कल देखा था ये सारी चीज़ें. तो n of s is going to be equal to 52. टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 52 कार्ड्स है. लेट ए बी द इवेंट, वही करना है बस. इवेंट ऑफ गेटिंग एन एस. ओके, एन एस, एस चाहिए मुझे. तो एस चाहिए मतलब कौन सा नंबर आएगा भाई. तो एन ऑफ ए गोइंग टू बी इक्वल टू कितने होते हैं, 4 होते हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4/52. तो 1/13. ठीक है. तो अभी तो आपको ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया लिखना कैसे है. बस मैं आपको अभी रेड कार्ड कितने होते हैं वो ये सब सोचते हैं. रेड कार्ड होंगे कितने होते हैं, रेड कार्ड 26 होते हैं. हाफ रेड होते हैं, हाफ ब्लैक होते हैं.
फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 है ना, 12 आर द फेस कार्ड। नॉट अ फेस कार्ड तो 52 माइनस 12, जो भी 52 में से बचे होंगे वो होंगे नॉट अ फेस कार्ड। ब्लैक किंग, किंग होते 4, उसमें से ब्लैक आधे तो 2। ऑनरेबल कार्ड्स ये थोड़ा सा अलग है। ऑनरेबल कार्ड्स का मतलब होता है 10 जैक क्वीन किंग एंड एस, दीज आर कॉल्ड एज ऑनरेबल कार्ड्स। ओके, 10 जैक क्वीन किंग एंड एस। ऑफकोर्स ये अलग अलग गेम के लिए अलग अलग यूज़ होता है, कोई कोई सिर्फ यहाँ से आगे यूज़ करते हैं, तो इट इज़ नॉट फिक्स, इट्स नॉट फिक्स। सो नॉर्मली ये क्वेश्चन आने बंद हो गए थे, बट फिर भी हम लोग ऑनरेबल कार्ड्स को कंसिडर करते हुए 20 कंसिडर करते हैं 10 से आगे। ठीक है, ऑनरेबल कार्ड को हम लोग 20 कंसिडर करते हैं। ओके, नॉट किंग, किंग कितने होते हैं? 4, 52 में से 4 गए तो 52 माइनस 4 इज नॉट किंग। ओके, सो दिस आर द नंबर एंड ऑफ कोर्स ये तो नंबर इवेंट क्या है, अभी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो दैट अपॉन 52, दैट अपॉन 52, दैट अपॉन 52, दैट्स इट, यही तो है, सिंपल सी बात आएगा। तो ये जो मैंने सॉल्व किया हुआ है यही क्वेश्चन इसी वे से बाकी भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। एस कितने थे? 4 थे, 4 एस। समझ में आ गया ना? सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं, बस राइटिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, ओके अभी ये जो लास्ट वाला कॉन्सेप्ट है ये हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो ये थोड़ा सा वियर्ड है, ये क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क के लिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो हम लोग ज़्यादा सभी नहीं करने वाले, थोड़े करते हैं। सैम्पल स्पेस देखते हैं पहले। सैम्पल स्पेस क्या होगा इसका, देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड। सैम्पल स्पेस होगा 2 डाइस आर थ्रोन, मैंने कल ही डिस्कस किया है, तो 1,1 है ना, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 एंड 1,6, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। आप बोलोगे ऐसे डैश डैश नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते, ठीक है, तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डोंट अननेसेसरी डू दैट। फाइव कॉमा वन है ये, मैं पर्पसली लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली लिख सकता था, लेकिन फिर आप बोलोगे सर आप ही नहीं लिखते तो हम क्यों लिखे। दिस शुड नॉट हैपन, देयरफॉर आई एम राइटिंग इट। और जब हम लिखते हैं तो उसका यूज़ क्या होता है वो भी आपको पता चल जाएगा। ओके, हम लिखते हैं तो मिस्टेक्स नहीं होते, और ठीक से लिखो। लास्ट ईयर ऐसे हुआ था कि एक बच्चे ने ऐसे लिखा था सारे, लेकिन ऐसे लाइन से लिखा था, 1,1 और 1,2 ऐसे ऐसे आगे 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 चलता गया। तो जब हम लोग आगे लिखते हैं ना तो उसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो ये जो अभी दिख रहा है इसका यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा देखते हैं, चलो 1 बाय 1। तो इसका जो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस होगा वो होगा 36, जो आप देख भी रहे हो, काउंट भी कर सकते हो, 6 6 36। ओके ओके, अभी हम लोग इवेंट देखते हैं। लेट ए बी द इवेंट, कैपिटल बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, देखो वही चीज़ कर रहे हैं हम लोग बार बार, गेटिंग डबलेट, डबलेट, डबली, ऐसे बहुत सारे वर्ड है इसके लिए। मतलब क्या होता है, दोनों सेम नंबर ऑन द बोथ द डैश, बोथ द डैश पे सेम नंबर कहाँ पे है आपको दिखाई देगा, यहाँ पे इस लाइन पे देखो। ओके, द डायगोनल ऑफ इट कितने होते हैं, ये 6 होते हैं, सेम नंबर ऑन बोथ द डैश, डायगोनल, तो इसलिए हम लोग वो सीक्वेंस में लिखते हैं। तो नंबर ऑफ ए इज गोइंग टू बी इक्वल टू 6, देखो 1 2 3 4 5 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा 6/36, so 1/6। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। बी, सम एज 7, लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम 7, सम 7, अभी वो भी सम 7, एक नंबर लिखो, वही नंबर आपको बाकी के भी नंबर दे देगा। ठीक है, समझने की कोशिश करो, एक नंबर ढूंढो इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट, वही नंबर के आजू बाजू आपको बाकी के नंबर मिल जाएंगे। वो कैसे होंगे ये आपको अभी पता चलेगा, देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड। 6 + 1 7, ओके, उसके बाद 5 + 2 जो होता है वो भी 7 होता है, नहीं
7, ये रहा, ये 7 है, 5 + 2 7 है, 3 + 4 7 है, 4 + 3 7 है, 5 + 2 7 है, 6 + 1 7 है। दैट्स व्हाट आई सेड, आपको वो सारे नंबर्स दे देगा इफ़ यू चेक फॉर द एक नंबर। ओके, उसी के आजू बाजू वो सारे नंबर्स आपको मिल जाएंगे, है ना, इंटरेस्टिंग सी चीज़। ओके, तो हो गया, दैट्स इट। तो मैं बस इसको है ना 6 है वो इरेज कर देता हूँ बस, क्योंकि बाकी नंबर्स के लिए थोड़ा सा ईजी रहेगा। सम एज 7, तो n ऑफ p अगेन विल बी इक्वल टू 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b विल बी इक्वल टू 6/36, 1/6। देखो, ये ऐसे नंबर लिखना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है, आपको बहुत सारे नंबर्स ऐसे ईजीली आ जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। सारे नहीं आएंगे बट एटलीस्ट 50-70% तो आपको आ जाएंगे। सम एज 8, तो सम एज 8 अभी हम लोग काउंट नहीं करेंगे। सम एज 8, तो ये रहा 6 + 2। ओके, इसी के आजू बाजू आपको बाकी नंबर देखो, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, मिल गया। देखो 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 है, 5 नंबर्स, सो 5/6, 5/36 हो गया। सम एज प्राइम नंबर, तो व्हेन आई वांट सम एज प्राइम नंबर, वन थिंग आई शुड अंडरस्टैंड कि सम का मतलब क्या होता है। मतलब इस पूरे इवेंट में कितना पॉसिबल सम हो सकता है। ओके, सम हो सकता है मैक्सिमम, मिनिमम 2, क्योंकि 1 + 1 2 हो जाएगा, एंड मैक्सिमम 6 + 6, तो कितना हो जाएगा 12। तो यही पॉसिबल सम है, 2 and 12। 2 and 12 के बीच में इंक्लूडिंग दीज टू नंबर्स कितने नंबर्स है जो प्राइम नंबर है। ओके, सम एज प्राइम नंबर चाहिए, सो 2 है, तो सम possible sum with prime number will be 2 is a prime number, 3 is a prime number, 4 5 is a prime number, 6 7 is a prime number, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11। तो मुझे सम चाहिए 2। ओके, सो लेट C be the event of getting sum as prime number। बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है ये, याद रखो इस सारी चीज़ों को एक साथ ही दिया हुआ है मैंने, सारे क्वेश्चंस एक साथ में। हाँ, एग्जाम में जब आता है तो कैसे आता है मालूम है, मैक्सिमम 2 सम्स, 3 सम्स इसमें से। ओके, ये सारे ऐसे नहीं आना। तो सम एज प्राइम नंबर, तो नंबर ऑफ सी इज गोइंग टू बी इक्वल टू, देखते हैं अभी 2 का, 2 एज ए सम, 2 एज ए सम क्या है, एक ही है, देखो एक, तो 1 + 3 एज ए सम, 2 + 1 1 + 2, तो इट इज़ 2 इवेंट आएंगे। 5 4 ये वाला दिख रहा है आपको, ये इन दिस मैनर यू गेट थिंग्स इजीली। 1 2 3 4 आएंगे, +5 हो गया, 7 एज सम, अभी भी तो देखा था 1 2 3 4 5 6 + 11 एज सम, 11, 5 + 6 11 होता है ना, 5 + 6 11, तो ये रहा 6 + 5, सो 2। तो दीज आर द नंबर्स टुगेदर वी हैव फॉर गेटिंग सम एज अ प्राइम नंबर, है ना। सो 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 7 15, तो आ गया 15 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज गोइंग टू बी इक्वल टू 15/36। कितना ईजी है देखो। अभी देखो, सम लेस देन 10, लेस देन 10 चाहिए, मतलब क्या चाहिए, तो मैं अभी ये सब कुछ इरेज कर देता हूँ। लेस देन 10 मतलब 11 and 12 छोड़ के, है ना, बिकॉज आई हैव द सम पॉसिबल इज टिल 11 and 12। तो ये सब कुछ अगर मैंने कंसिडर किया तो 36 से जो होता है वो 12 तक सम होता है। ओके, अभी 11 के है 2 और 12 का है सिर्फ 1, बराबर, यही है, इसके आजू बाजू मिल जाता है। इसको छोड़ के बाकी सारे लेस देन 10 है। हम 10 काउंट नहीं करते बैठेंगे, क्योंकि वो दैट वुड बी बिट डिफिकल्ट, इजंट इट। तो कितने हैं, 1 2 3, 36 में से 3 गए तो 33। तो मेरा जो सम लेस देन 10 है वो 33 से आ जाएगा। हाँ, ओके, सॉरी, लेस देन 10, लेस देन 10 मतलब 10 भी काउंट नहीं होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी काउंट नहीं होगा। तो अगर हमें कैंसिल करना है तो ये कैंसिल करना पड़ेगा, ये कैंसिल करना पड़ेगा और ये कैंसिल करना पड़ेगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 कैंसिल करने पड़ेंगे। तो 30/36 इज माई आंसर फॉर दिस, 30/36। ओके, बोथ एज प्राइम नंबर। तो आपको सर्च करो ना प्राइम नंबर कौन से हैं, बोथ मतलब दोनों डाइस पे, यहाँ पर भी प्राइम नंबर चाहिए और यहाँ पर भी प्राइम नंबर चाहिए, ऐसे वाले इसमें से ढूंढ सकते हो आप इजीली। प्राइम नंबर कौन सा पहले देखो, 2 3 and 5, ये प्राइम नंबर है। अभी 2 3 5 दिखा तो उसको कलर करते हैं आप लोग, ठीक है।
दोनों पे 1 है, यहाँ पे नहीं, ये रहा, ठीक है, ये रहा, फिर ये रहा, उसके बाद ये रहा, सीक्वेंस में देखते जाओ। पहले इसमें तो कोई नहीं बिकॉज 1 है, दूसरे इसमें 2 है इसलिए हमने देखा तो ये 3 मिल गए, तीसरे इसमें 3 है तो 2 3 है, 3 3 भी है, 4 3 नहीं चलेगा, 5 3 यस, 6 3 नहीं चलेगा, दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए। इसमें तो 4 है एक जगह पे तो वो नहीं चलेगा। 5 वाला हाँ हो सकता है, 2 5 3 5 5 5, बाकी तो नहीं होंगे, इसमें 6 है सारे जगह पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9/36 हो गया, 1/4। तो कितना ईजी है, देखो कितना ईजी है। तो व्हेन यू राइट ऑल दिस थिंग्स इट बिकम्स ईजी टू फाइंड आउट, ओके, इट विल बी ईजी टू फाइंड आउट। तो चलो ठीक है, आई एंड जे आई एम कीपिंग इट फॉर यू, ओके, ऑफकोर्स टुमारो आई विल बी डिस्कसिंग इट, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वन, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, हम लोग डिस्कस करने ही वाले इसको, बट अभी राइट नाउ थोड़ा सा सोचो एंड खुद से ट्राई करो, बाकी तो आप लोग इजीली कर सकते हो। तो ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी टॉपिक, ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन हाँ मेजर एस्पेक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी टॉपिक हमने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, मेजर एस्पेक्ट, ओके। और भी बहुत क्वेश्चन है, क्वेश्चन बस सॉल्व ही करने हैं और कुछ नहीं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू टुमारो, कुछ अलग चीज़ें देखेंगे प्रोबेबिलिटी के।